شامل کریں گے اپنا سیگمنٹ عالم کے بول، جس میں ہم بات کرتے ہیں دین کی اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آج بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے پاس بالکل، اور ایک ایسا ایشو ہے جس کو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہوا ہے۔ ویڈیو ہم سب نے دیکھی ہی ہوگی، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ طلعت، آپ نے دیکھی ہے؟ بالکل میں نے دیکھی، بڑا افسوس ہوا، لیکن مجھے حیرت نہیں ہوئی سیرس، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات پہلے بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے، لیکن یہ ویڈیو انڈیا کی ہے، ویڈیوز کو دکھاتے بھی ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈیڈ باڈی سے، ایک مرے ہوئے انسان کے جسم سے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں کاغذات کے اوپر، تاکہ اس کی جائیداد ہتھیائی جا سکے۔ جو اس وقت رپورٹس آئی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کی ویڈیو ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاش پڑی ہے گاڑی کے پچھلی سیٹ کے اوپر، وکیل صاحب آتے ہیں اور انگوٹھے لگوانا شروع کرتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس وہ جو سٹیمپ کے لیے وہ جو پیڈ ہوتا ہے نا، انک پیڈ، اس پہ وہ ہاتھ اس کا رکھوا کے ان کا وہ انگوٹھا لگوا رہے ہیں، اور اس کو یہ بالکل پرواہ نہیں کہ میں زور سے مروڑ رہا ہوں، ٹیڑھا میڑھا کر رہا ہوں، کوئی اذیت یا تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، اس کو بس انگوٹھا لگوانا ہے کہ بس یہ لگنا چاہیے۔ تو لاش تھی، میں آپ کو بتاؤں ابھی کا واقعہ، کچھ دنوں پہلے کا میں نے واقعہ دیکھا کہ ایک لوتا بیٹا تھا، ماں باپ کو بیٹے سے اتنا پیار تھا، سب کچھ اس بیٹے کے نام پہ کر دیا، اور بیٹے کی بیوی نے اس بیٹے کے کان بھرے اور اس بیٹے نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں اب جائیداد، پیسے کی خاطر ہم اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم کس نہج پہ آن پڑے ہیں۔ اسی سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے پروفیسر یونس صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا۔ پروفیسر صاحب، یہ رجحان جو اس قدر بڑھ چکا ہے، اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے جو رجحان اس وقت ہے کہ بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح دینا، اور بیٹوں کے لیے تو سب کچھ کرنا، اور بیٹی کی اگر شادی کر دی ہے بس بہت بڑا کام کر دیا۔ اب بھی مسلمان ہونے کے باوجود بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دیتے۔ کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں، بزنس کرتے ہیں، دکانیں کرتے ہیں، اپنی ساری دکانیں اپنے بیٹوں کو دے جائیں گے، بیٹی کو کوئی کچھ نہیں دے گا۔ یہ ظلم ہے، اسلام کی خلاف ہے۔ اللہ رب العزت میں جب بیٹی کو حق دیا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے بیٹی کا حق ادا کرے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا جائیداد پر حق ہے، اور یہ حق ماں باپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ حق ادا نہیں کرتے، وہ اولاد جن کی محبت میں آ کر، بچے جن کی محبت میں آ کر بیٹیوں کو حق مارتے، اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتہ تمہارے ان اولاد میں سے تمہاری کون سا فائدہ مند ہے اور کون سا نقصان دہ ہے۔ اگر تم بیٹی کا حق مار کر بیٹوں کو دو گے، کل یہی بیٹا تمہارا دشمن بن جائے گا۔ نہیں پروفیسر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ انصاف ہے جو کہ والدین کو کرنا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے، لیکن ناگہانی موت بھی آ جاتی ہے، آپ نہیں پہلے کوئی ایسا فیصلہ کر پاتے۔ اگر کسی کے والدین اس طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد انصاف دینے کے لیے ادارے موجود ہیں، وکلاء موجود ہیں کہ آپ جا کر یہ کہیں جی ہمیں شرعی طور پر ڈیوائیڈ کرنے میں بتا دیں ہم کیا کریں۔ لیکن یہ جو لالچ ہے کہ نہیں سب کچھ میں سمیٹ لوں، اس بھائی کو پتہ نہ لگے، اس بہن کو پتہ نہ لگے کہ آپ مرتے ہوئے ماں باپ کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں، یہ کیا سوچ ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ انسانیت ختم ہو گئی، انسانیت کا احترام ختم ہو گیا، اور دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ پر ایسی چھا گئی ہے کہ ہم احترام انسانیت ہی بھول گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر والدین فوت ہو گئے، والد فوت ہو گیا، وہ جائیداد کو تقسیم نہ کر سکا، قرآن نے تقسیم کیا ہے، اللہ نے تقسیم کیا ہے، اس کے لیے ادارے قائم ہیں، ان کے پاس جائیے، وہ شرع کے مطابق آپ کے درمیان تقسیم کر دیں۔ دوسرے مذاہب جو ہے ان کی تو مشکل ہے، کیونکہ ان میں جائیداد کی تقسیم کا وہ نظام نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اسلام واحد دین ہے جس نے جائیداد کی تقسیم کا نظام بنایا ہے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق کھانا۔ آپ نے جو سوال پوچھا نا، وہ پوچھا مردہ لوگ، لیکن ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں زندہ ماں باپ کو بچے اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، عدالتوں میں کیس کر رہے ہیں۔ وجہ ہے پیسہ، وجہ ہے جائیداد، وجہ ہے زمین۔ ہم اس شخص کا انجام آپ کیا بتائیں گے، میں کیا ہوگا قیامت کے روز جس نے اپنے ماں باپ کے اوپر یہ ظلم کیا؟ واقعی وہ شخص قیامت والے دن انتہائی اللہ کا ذلیل و رسوا ہوگا، جس نے اپنے ماں باپ کو
घर से निकाल कर ईदगाहों में छोड़ दिया, दूसरी जगह छोड़ दिया, सिर्फ जायदाद की वजह से, ताकि ये मकान मेरा हो जाए, ये जायदाद मेरी हो जाए। समझे ना? ऐसे लोगों का अंजाम इंतहाई बुरा है। अल्लाह के यहाँ इनको बड़ी सख्त सज़ा मिलेगी, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को संभालें। और रमज़ान मुबारक का ये मौका है, हम सबको चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये अयाम जो है बड़े मुबारक अयाम है, एतिकाफ़ के अयाम है, लैलतुल क़द्र के अयाम है। इन अयाम में जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हैं उनको भी चाहिए कि लोगों के हुकूक़ अदा करें। लोगों के हुकूक़ अदा किए बगैर एतिकाफ़ में बैठ गए, समझ लिए ये इबादत, एतिकाफ़ तो सुन्नत की इबादत है ना, जो अगर फ़रज़ छोड़ दिए उसका तो अल्लाह का ज़रूर पकड़ होगा। हदीस में आता है इंसान के अमाल 3 दफ्तरों में पेश किए जाएंगे, 3 किताबों में पेश किए। एक दफ्तर तो ऐसा होगा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, उसकी हिसाब मिलेगी, वो है शिरक। अगर जिसने शिरक किया, शिरक की हिसाब मिले बगैर। और दूसरा है वो दफ्तर जिसमें लोगों के हकूक़ अदा करने होंगे, अल्लाह उनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ेगा, हत्ता कि अहले जन्नत जब जन्नत जाने के करीब होंगे अल्लाह ताला उन्हें रोकेगा, कहेगा यहाँ एक दूसरे को हकूक़ अदा करो। और वहाँ उसमें तो उनको हक़ अदा करना पड़ेगा, बेटे को बाप का हक़ अदा करना पड़ेगा, माँ बाप को औलाद का हक़ अदा करना, उसके बाद जाकर वो जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरह पुरसरात पर जो गुजरेंगे लोग, वो भी इस तरह उनको अल्लाह ताला कहेगा तो हक़ अदा करो। या हक़ अदा किए बगैर कोई किसी हक़ खाकर जन्नत में नहीं जाएगा। अगर आप एतिकाफ़ बैठे हैं, हुकूकुल इबाद का इंतहाई ख्याल रखिए। अगर किसी का आपने हक़ देना है, पहले वो हक़ अदा कीजिए, उसके बाद अल्लाह की तरफ। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ और जो मैं चाहूँगी इस पर आप थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि हम हक़ भी खाते हैं, हक़ खाते हैं, हक मारते हैं, और उसके बाद खाते हैं और फिर हज पे चले जाते हैं, हज पे जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। क्या ये इबादत कबूल होंगी? और हम इसकी संगीनी को क्यों नहीं समझ रहे? रसूल अकरम ने फरमाया जो शख्स हराम के पैसे से हज जाता है, उम्रा जाता है, वो कहता है लब्बैक, अल्लाह फरमाता ला लब्बैक लक, मैं तेरी लब्बैक को कबूल नहीं करता। मतबुक हराम व किस्वत हम, तेरा खाना हराम का, तेरा पहनना हराम का है, तो किस मुँह से आ रहा है मेरे पास? तो हलाल जो है इस इबादत की कबूलियत की बुनियाद है। जो शख्स हलाल खाता है और अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह का वली है। तो हलाल खाना बुनियादी चीज़। जो शख्स हराम के पैसे हज करे या हराम के पैसे उम्रा करे, अल्लाह ताला उसके हज और उम्र को कबूल नहीं कर, फ़ौरन अल्लाह की तरफ दुआ आती है, जब कहता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ला लब्बैक अल्लाह का, तेरी कोई लब्बैक नहीं, मैं तेरी लब्बैक को नहीं मानता। बेशक बेशक। और मैं सिद्दीकी साहब आपकी इजाज़त से अपने बुज़ुर्ग का एक कॉल यहाँ शामिल करना चाहूँगा। हमारे बुज़ुर्ग हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी दामद बरकातहुम आलिया, उन्होंने हमें समझाया है और हमेशा बताया कि माँ का मकाम बहुत 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 बड़ा है, जिसके लिए आप नमाज तोड़ सकते हो, जिसके नाम से आपको कब्र से उठाया जाएगा, जिसके पैरों में जन्नत है। जिसकी माँ उससे नाराज़ हो, जिस शख्स से उसकी माँ नाराज़ हो, उस शख्स को क्या, उसके बुज़ुर्ग को देखना भी मत, यानी उनसे उनकी तरफ सलाम दुआ मुसाफिया दूर की बात, उस शख्स के बुजुर्ग को देखना भी मत, क्योंकि जो बुजुर्ग अपने फकीर को ये ना सिखा सका कि अपनी माँ की क्या इज्जत करनी है, क्या एहतराम करना है, तो वो बुजुर्ग है ही नहीं। तो अंदाजा कीजिए आज वो लोग जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढाते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम पर छोड़ देते हैं, जायदाद पैसों की खातिर कहते हैं घर से निकल जाओ, हम नहीं जानते, और जिंदा माँ बाप के लिए कहते हैं हमारे तो माँ बाप है ही नहीं, हमें परवाह ही नहीं कि उनकी क्या हाल हो, उन्हीं का खाते हैं और उनको खिलाने से उनकी जान जाती है। उनको मालूम होना चाहिए कि वो जिस आग की तैयारी कर रहे हैं वो आग ऐसी आग होगी यकीनन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, हिसाब पूरा लिया जाएगा। बिल्कुल। और वालिदैन के बारे में तो ये कहा गया है कि उफ तक ना कहो। अगर आपको उनका लहजा, उनका अंदाज पसंद नहीं आ रहा तो आपको उफ तक कहने की भी इजाज़त नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ताला हिदायत दे कि जो मनाजिर हमने देखे हैं कि दिल कांप गया है कि खातून, मतलब पता चल रहा है कि शायद वो फौत हो चुकी हैं और बच्चे इस तरह से। कुरंगी से ही किस्सा आया था ना कि माइनर बच्ची हॉस्पिटल गई थी तो मालूम पड़ा बाप और उसका भाई उसको 9 महीनों से रेप कर रहा था, उस बच्ची की उम्र को 12-13 साल थी। हम एक ऐसी गंदी सोसाइटी में आ गए सिद्दीकी साहब जहां पर ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि जिनका एक जमाने में कोई तसव्वुर करता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, और आज वो गुनाह हमारे सामने हो रहे हैं, चाहे वो माँ बाप के ऊपर जुल्म हो, चाहे वो अपनी बेटियों का रेप हो। हम कहां आन खड़े हुए हैं सिद्दीकी साहब? हमारे अंदर दीन बचा है या हम मुनाफिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सर्रहु
मन काना फी सलासुन, जिस शख्स में 3 चीज़ें पाई जाएंगी, यस्सरल्लाहु हतफ़हु, अल्लाह उसकी मौत आसान कर देगा। पहली चीज़ रिफ़्क़ुम बिद्दईफ़, जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ नरमी के साथ पेश आना, अच्छा मामला करना। शफ़क़तुन अलल वालिदैन, माँ बाप के साथ शफ़क़त के साथ पेश आना। शफ़क़त मोहब्बत से बढ़कर है। मोहब्बत तो यह है कि आप अपने बच्चे को गोद में ले लिया और जब अगर बच्चा गोद में पेशाब कर देता है आप उसको बुरा नहीं जानते, ये शफ़क़त है। इसी तरह माँ बाप के शफ़क़त पेश करना। और तीसरी चीज़ रसूल ने फरमाया, अल्लज़ीना यहकुमूना लिन्नास का हुक्म लिअन्फुसिहिम, जो लोगों के लिए वही हुक्म लगाते हैं जो अपनी ज़ात के लिए हुक्म लगाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जिस शख्स में पाई गई, अल्लाह उसकी मौत आसान करेगा, उसे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। माँ बाप गरीब कमज़ोरों के साथ नरमी के पेश आना और माँ बाप के साथ शफ़क़त पेश आना और लोगों के लिए वही रवैया रखना जो अपनी ज़ात के बारे में रवैया। बिल्कुल आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर दुआ ना की होती ना कि मेरी उम्मत पर अज़ाब अल्लाह ताला नाज़िल ना करना, तो जितने आपने इस मुआशरे के बिगाड़ या बुराइयां या गुनाह गिनवा दिए तला अब तक अज़ाब आ चुका होता। बेशक आप सही कह रही हैं। और अपने आखिर में अपने मुर्शिद का एक और बहुत जल्दी से कॉल बता दूं कि ये दुनिया हमारे कश्ती का सफ़र है और ये दुनिया पानी है। अगर दुनिया कश्ती में आ गई तो कश्ती डूब जाएगी। यकीन है अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएं तो दुनिया से प्यार ना करें, आखिरत से प्यार करें। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। तलहा को सर इसको इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।